Okay, to begin with, let us understand what exactly we are going to do in kinetics. Could you give me an idea what exactly we are going to do it in kinetics? Mm, We are going to talk about the speed of the reaction. We are going to talk about how fast the reaction is going and how slow the reaction is going. ठीक है ना? yes, sir. And it is absolutely different from thermodynamics where we are only bothered about the final and initial position. यहाँ पर हम इनिशियल और फाइनल पोजीशन की बात तो नहीं करेंगे, हम यहाँ पे एक्चुअली बात करेंगे किस रास्ते से एक रिएक्शन जा रहा है। और जब हम रास्ते की बात करते हैं, then in that case we talk about the path, we talk about the mechanism. और काइनेटिक्स और थर्मोडायनामिक्स से आपस में कोई रिलेशन नहीं है। हम थर्मोडायनामिक्स से काइनेटिक्स और काइनेटिक्स से थर्मोडायनामिक्स नहीं निकाल सकते। ठीक है? Yes, sir. ओके, तो सबसे पहले वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट समथिंग कॉल्ड व्हाट एग्जैक्टली इज मेंट बाय द reaction and the completion of the reaction. I write a reaction. P of A plus Q of B gives us R of C and S of D. ठीक है? Is it visible, clear? Yes, sir. Okay. अब मुझे सिर्फ इतना बताओ, I say this reaction is completed. ये reaction complete हो गया. What is the meaning of reaction being completed? सर की रिएक्टेंट्स पूरे यूज हो गए. उसमें भी एक क्वेश्चन आ जाता है, what do you mean by reactant being completely consumed? कौन सा रिएक्टेंट, कितने रिएक्टेंट? अब ये थोड़ी ना कि अगर मैं कैंडल जलाने की बात करूंगा तो कैंडल अगर पूरी कंज्यूम हो गई तो साथ में एटमॉस्फेयर भी कंज्यूम हो गया. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन? हाँ बोलो. सर पता नहीं. देखो सुनो, अगर हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं और हम ये कहते हैं कि आपका कोर्स कंप्लीट हो गया, तो क्या ऐसा कभी हो सकता है किसी भी स्टूडेंट का कोर्स कभी भी कंप्लीट हो जाए चाहे वो टॉपर ही क्यों ना हो? नहीं सर. तो फिर कोर्स कंप्लीशन का मीनिंग क्या हुआ? कभी बच्चा हर बच्चा कोई भी ना कभी तो ये बोलता है ना मेरा कोर्स कंप्लीट हो गया. यस सर. तो उस कोर्स कंप्लीशन का मीनिंग क्या होता है? ही उस कोर्स हर कम, उस कोर्स कंप्लीशन का मीनिंग ये होता है कि उस बच्चे ने जो सोचा होता है कि मैं इतना कोर्स करूंगा तो मैं इसे कंप्लीट मान लूंगा, कंप्लीट हो जाएगा नहीं, कंप्लीट मान लूंगा, वो कंप्लीट हो गया. तो इसी तरीके से जब हम रिएक्शन कंप्लीशन की बात करते हैं तो रिएक्शन कंप्लीशन भी यही होता है कि जो हमने पहले से डिफाइन कर रखा है कि भाई इतना रिएक्शन अगर कंप्लीट हो गया तो हम उसे कंप्लीट मान लेंगे. जब उतना रिएक्शन हो जाता है तो हम उसे कंप्लीट मान लेते हैं. ठीक है? यस सर. सो अ रिएक्शन इज कंसिडर्ड कंप्लीटेड when a predefined amount of a reactant is consumed along with the required amount of other reactants and the corresponding amount of products is formed. Corresponding amount of products is formed as given by a balanced chemical equation. Clear? यस So सर. whatever we define, according to that, the reaction is completed.
ठीक है, तो यहां पर अगर हम ये मानकर चलते हैं कि हम P मोल्स ऑफ A को कंज्यूम करेंगे तो रिएक्शन कंप्लीट होगा, तो P moles of A will be consumed, Q moles of B will be consumed, R moles of C will be formed, and S moles of D would be formed. जब ऐसा हो जाएगा तो we will say the reaction is completed. अब मुझे नहीं मतलब कि A बचा है या नहीं बचा, B बचा है या नहीं बचा, I don't care about it. The only thing is मैंने इतना बोला था और इतना हो गया, तो ये हम बोलेंगे reaction is completed. ठीक है? Now, once we have decided the reaction to be completed, now we can even say that what would be half completion of the reaction? तो जब completion of the reaction हमने define कर दिया, could you give me what is half completion of the reaction? When would the reaction be considered half completed? When half amount of predefined reactant is consumed. When half of the predefined amount of a reactant is consumed, along with the required amount of other reactants and the corresponding amount of products is formed, Yes, sir. that will be 50% reaction. And it is important that the completion of reaction need not be defined just by the reactant. It can be defined by the product as well. हम ये भी कह सकते हैं कि अगर C के इतने मोल्स अगर हम बन गए तो we will consider it to be, just a minute. Hello? Okay. So we can talk about any of the reactant, we can talk about any of the product. And now we can define a quantity called advancement. तो advancement की definition लिख लीजिए. Advancement is the fraction of reaction advancement is the fraction of reaction completed. Full stop. The maximum advancement is by default, the maximum advancement is by default 1. Clear? आगे एक चीज और लिख लीजिए. Most often the advancement is represented in concentration units. ठीक है, तो अगर मैक्सिमम एडवांसमेंट की बात करेंगे तो वी कैन से इट इज 1 mole per liter or maybe 1 bar. So depending on the substance, we are going to have the advancement. Clear? So let us say the advancement is x. जब advancement x है तो p moles per liter of A would be consumed. Advancement 1 है तो p moles would be consumed. अगर advancement x है तो px moles of A would be consumed. Qx moles of B will be consumed. Rx moles of C will be formed,
and Sx moles of D will be formed. ठीक है, तो X advancement का मतलब ये हो गया. Now, having talked about this X advancement, now we are going to talk about a very simple question. ठीक है, question is, for reaction A giving B, for reaction A giving B, initial moles of A are, let's say, A naught. ठीक है, then moles of A consumed is, let's say, Px. और for that matter, चलो एक काम करते हैं, we say Ax. The moles of A consumed is Ax. ठीक है, what is the change in moles of A? Answer. Sir, A naught minus AX. Okay, so you give me the answer as A naught minus Ax. ठीक है, एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ लो. Yes, sir. अब फिर से देख लो आंसर एक बार, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? No, sir. ओके, चलो अब मैं इसका आंसर सॉल्व करना शुरू करते हैं. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चेंज? हाउ डू वी कैलकुलेट द चेंज? So, final minus initial मतलब. Okay, so we have something called change is equal to final minus initial. ठीक है? Yes. Okay. Initial concentration is equal to A naught. Consumed is equal to Ax. Remaining, which can also be termed as final, is equal to A naught minus Ax. ठीक है? So, what would be the change? It would be A naught minus Ax minus A naught. So what should it be? Sir, A minus AX. Check it out. Sir, minus AX ही तो होगा. हाँ, तो माइनस ए एक्स हुआ ना, हाँ, तो आपने क्या बोला था? ए नॉट माइनस ए एक्स. मैंने minus AX बोला था. ओके, सो इट वुड बी माइनस ए एक्स. क्लियर? एक छोटी सी क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं अनन्या, आपने पहले ए नॉट माइनस ए एक्स आंसर क्यों दिया था? सर, वो फाइनल होगा. चेंज. तो मैंने तो आपसे चेंज पूछा था, मैंने तो आपसे फाइनल नहीं पूछा था. अच्छा. Instead of considering A naught minus AX as final, I considered AX आई डोंट नो व्हाट यू कंसिडर्ड. to be final. I have no idea. Sir, इसलिए मैंने आपसे 2 बार क्वेश्चन पढ़ने के लिए कहा था. करेक्ट? yes. Don't worry, most of the students get this question wrong.
So the change in concentration of A would be minus AX. So what would be the change in concentration of B? अगर हम इस रिएक्शन की बात करें, अगर हम इस रिएक्शन जो सामने रिएक्शन लिखा हुआ है इसकी बात करें, तो द चेंज इन concentration of A, which I would say, let's say D of A, that will become minus PX. Yes, sir. And what will be the change in concentration of B? Minus QX. Minus QX. What will be the change in concentration of C? RX. Yes, plus Rx. And what will be the change in concentration of D? SX. Plus Sx. Got it here? तो चलिए अभी मैं काम करते हैं. Let's talk about the change in concentration per unit time. That is what we talk about is rate of change of concentration. ठीक है? जब हम rate of change of concentration की बात करेंगे तो it is going to be dA by dt. Now dA by dt would be equal to d of minus px by dt. ठीक है, इसमें से माइनस पी बाहर निकल आएगा तो वी गेट इट माइनस पी डी एक्स बाय डी टी. ठीक है, तो अब अगर हम इसको डिफाइन करें डी एक्स बाय डी टी को, तो डी एक्स बाय डी टी वुड बिकम इक्वल टू 1 बाय पी, और अदर 1 बाय पी नहीं, माइनस 1 बाय पी डी एक्स बाय डी टी. कर्तव्य आ गया, कर्तव्य आ गया, एक मिनट. Okay, and in the same manner, और आधा ये क्या लिख रहा हूं मैं, दिस विल बिकम डी ए बाय डी टी, एंड इसी तरीके से ये बन जाएगा 1 बाय क्यू डी ऑफ बी बाय डी टी, विच बिकम्स इक्वल टू 1 बाय आर डी सी बाय डी टी, विच बिकम्स इक्वल टू 1 बाय एस डी ऑफ डी by dt. Is it okay? Yes, sir. Now this rate of change of advancement is called the rate of reaction. ठीक है? Yes, sir. This is what we know as the rate of reaction. तो जरा आप rate of reaction की definition लिख लीजिए. The rate of reaction is the rate of change. Rate of reaction is the rate of change of advancement. Rate of reaction is the rate of change of advancement, which is equal to rate of advancement is rate of change of rate of reaction is rate of change of advancement, which is equal to the rate of change, which is equal to the rate of change
of concentration, which is equal to the rate of change of concentration of any of the reactant or product, which is equal to the rate of change of any of the reactant or product divided by their respective stoichiometric coefficients, which are negative for the reactants and positive for the products. ठीक है? Now the statement that you have written is also termed as the differential rate law. इसे differential rate law भी कहा जाता है. Okay, sir. ठीक है? अब यहां पर अगर हम चाहें तो हम इसको एवरेज रेट भी निकाल सकते हैं. एवरेज रेट में फर्क सिर्फ इतना आएगा that rate average would become equal to minus 1 by P. Instead of dA, it is going to become delta A upon delta T. ठीक है? In the same manner, it's going to become 1 by Q of delta B upon delta T. And that's going to be equal to 1 by R delta C upon delta T, which is going to become equal to 1 by S into delta of D upon delta T. So that's going to be the average. तो अगर हम एक पर्टिकुलर टाइम गैप के अंदर बात करते हैं तो इस तरीके से हम एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन निकाल सकते हैं. Okay, sir. क्लियर? चलो, ये तो हमने एक की बात की. अब एक कुछ छोटे से क्वेश्चंस की बात कर लें. Yes, sir. हमारे पास एक रिएक्शन है NH3 और 2NH3. नहीं, इस तरीके से नहीं लेते, उल्टा ले लेते हैं. दैट इज N2 plus 3H2 gives us 2NH3. Can you write the equation for the differential rate law of this equation? इसका डिफरेंशियल रेट लॉ लिख सकते हैं आप? Yes, sir. लिख दो. सर तो डेल्टा एन 2 ऐसे करके लिख दूं. हाँ, डी लिखो ना. डिफरेंशियल रेट लॉ तो ये है. अच्छा.
Yes, sir. ठीक है, तो इट कम्स आउट टू बी dn2 by dt minus dn2 by dt is equal to minus 1 by 3 dh2 by dt is equal to 1 by 2 dnh3 by dt. Yes, sir. Okay, so that's what we have as the differential rate law for the Haber's process. चलिए अब एक क्वेश्चन और लिख लीजिए. In Haber's process given by this equation, ये सामने वाली इक्वेशन जो है 0.6 moles 0.6 moles of hydrogen 0.6 moles of hydrogen are consumed in 10 minutes. 0.6 moles of hydrogen are consumed in 10 minutes. Calculate the rate of change. Calculate the rate of change of concentration. Calculate the rate of change of concentration of hydrogen, nitrogen, and ammonia, and also the rate of reaction. सर इसमें कंसंट्रेशन कैसे निकालेंगे? कंसंट्रेशन चेंज निकालना ना बेटा, आपको कंसंट्रेशन तो चाहिए ही नहीं, और मैंने वो आपको बता दिया है.
बेटा DA is minus 0.6. Change in concentration of hydrogen is minus 0.6. ठीक है? Yes, sir. Keep the time in 10 minutes only. So the change in concentration of hydrogen would become minus 0.06. Yes, sir. ठीक है? Now you have to multiply it by 1 by 3 क्योंकि stoichiometric coefficient of hydrogen is 3. Yes, sir. So it becomes 1 by 3 into minus 0.06. Yes, sir. So the rate of change of concentration of hydrogen is minus 0.02 moles per liter per minute or moles per minute. ठीक है? Yes, sir. बाकियों का निकाल दो. Sir, minus 0.06 नाइट्रोजन की. नाइट्रोजन की माइनस 0.06 कैसे आ गई? सर क्योंकि dN2 by dt is equal to 1 by 3 dH2 by dt. सामने इक्वेशन जो लिखी हुई है उसके अंदर सिर्फ सब्स्टिट्यूट ही तो करना है. यस सर. सर बट फिर अमोनिया की जो आएगी उसमें तो हाँ 1/2 DNH3/dt है. is equal to 1 by 3 dH2 by dt. यस सर. ठीक है? इनफैक्ट माइनस 1 by 3 dH2 by dt is equal to 1 by 2 dNH3 by dt. यस सर. ठीक है? So dNH3 by dt would be equal to minus 2 by 3 dNH2 by dt. यस सर. So it should come out to be plus 0.04. सर तो DNH2/dt 0.04 होगा. dNH3 by dt 0.04. NH3. Yes, it is. ठीक है. And what will be the rate of reaction? वो तो इनमें से किसी से भी निकल जाएगा. रेट ऑफ रिएक्शन तो माइनस Plus. सॉरी
0.02 होगा ना? परफेक्ट, इट इज। ठीक है, यस सर। अब इस क्वेश्चन को एक बार देख लो, कुछ पूछना है तो पूछ लो, कहीं कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। नहीं सर। ठीक है ना? So that is what we term as the rate of the reaction. ओके सर। ठीक है, तो चलिए, ये हमने रेट ऑफ द रिएक्शन की बात कर ली, हमने डिफरेंशियल रेट लॉ की बात कर लिया। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट द रेट ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, यहां तक तो कुछ नहीं पूछना अब? नहीं सर। Okay, so let's talk about the factors which affect the rate of the reaction. The very first factor, हमारे पास काफी सारे factors हैं जो rate of reaction को affect करते हैं, and we are gonna deal with them one by one. ठीक है, तो जब हम इनकी बात करते हैं तो हमारे पास factors which affect the rate of the reaction are something like concentration, और concentration में ही include कर दिया जाता है pressure को. Then we have the nature. Then we have the temperature. We have the catalyst. We have the radiation, and we have the solvent. So these are the factors which affect the rate of the reaction. ओके सर। And here, when we talk about this rate of the reaction, अब हम एक एक करके इन factors को discuss करते चले जाएंगे. ठीक है, तो सबसे पहले let's talk about the factor called the solvent. सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि solvent होता क्या है. तो Ananya, could you give me the definition of the solvent according to the chemical kinetics? देखो, हर चैप्टर के लिए हमारे पास एक solvent की definition change होती चली जाती है. So what would be the definition of a solvent when we talk about something called the rate of the reaction, kinetics? लिख लीजिए. The component in a reaction, the component in a reaction which is present, the component in a reaction which is present in a huge excess, the component in a reaction which is present in a huge excess, so that a small change so that a small change in its concentration, so that a small change in its concentration does not change
its availability, so that the small change in its concentration does not change its availability to the reaction. इलेक्ट्रिक कार की चाबी, इलेक्ट्रिक कार की चाबी, इलेक्ट्रिक कार दे रखी है वहीं, मैंने ठीक आपको दी थी. Does not change its availability to the reaction, that is its active mass. ठीक है. यस सर. तो अगर हम थोड़ा सा कंसंट्रेशन चेंज कर दें सॉल्वेंट का, तो उससे उसके एक्टिव मास पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ठीक है. यस सर. अब एक्टिव मास की भी डेफिनेशन लिख लें. एक्टिव मास it is the quantity on which the rate of reaction is directly dependent. ठीक है. तो जिस भी क्वांटिटी पे रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली डिपेंडेंट है उसे हम एक्टिव मास बोलते हैं. ठीक है. सो ये हमने एक्टिव मास की बात कर ली और हमने सॉल्वेंट की बात कर ली. ठीक है. So that's what we have understood. What is a solvent? It's an huge excess and its active mass remains a constant. Clear? अब सॉल्वेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. यस सर. अब ये जरूरी नहीं कि हर रिएक्शन में सॉल्वेंट हो, लेकिन जिसमें भी रिएक्शन में सॉल्वेंट होता है उसमें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वो अलग बात है. अच्छा, एक स्टेटमेंट और लिख लीजिए. Since the active mass of the solvent remains a constant, it is since the active mass of the solvent remains a constant, it is included in the rate constant. It is included in the rate constant and hence never mentioned in the rate equation.
तो इसे कभी भी रेट इक्वेशन में मेंशन नहीं Yes, sir. किया जाता। इज दैट क्लियर? दैट इज व्हाट वी हैव एज अ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का बहुत Yes, इंपॉर्टेंट sir. रोल हो जाता है। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल हम ले लेते हैं, एंड दैट एग्जांपल इज इनो। हाँ जी। आगे बढ़िए, उनके साथ साथ नीचे की तरफ आगे चले जाइए। ना ना उल्टा। ओके, सो यहाँ पर हम सॉल्वेंट की जब बात करें, Yes, मैंने sir. इनो की जब बात की, तो इनो के अंदर आपको पता है कंपोनेंट्स क्या होते हैं? व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ इनो? No, sir. इनो कंसिस्ट ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट along with citric acid। तो सोडियम बाइकार्बोनेट इज द बेस, सिट्रिक एसिड इज द एसिड, और ये दोनों एक साथ हम रखते हैं, फिर भी आपस में रिएक्ट नहीं करते क्योंकि इनमें सॉल्वेंट नहीं है। तो जब हम उसके अंदर सॉल्वेंट डाल देते पानी, तो रिएक्शन जो 2 साल में नहीं होता, वो 2 सेकेंड में हो जाता है। दैट इज द मीनिंग ऑफ द सॉल्वेंट। तो जैसे ही हम सॉल्वेंट का कंसेंट्रेशन डालते हैं, सॉल्वेंट डालते हैं, रिएक्शन बहुत फास्ट हो जाता है। कई केसेस में सॉल्वेंट रिएक्शन को स्लो भी करता है, कई केसेस में फास्ट भी करता है, और कई केस में सॉल्वेंट का कोई रोल ही नहीं होता। ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो सॉल्वेंट इन इटसेल्फ कुड बी अ रिएक्टेंट, सॉल्वेंट कुड बी अ प्रोडक्ट, और सॉल्वेंट कुड बी जस्ट एन इनर्ट मीडियम। तो सॉल्वेंट इनमें से कुछ भी हो सकता है। रिएक्टेंट हो सकता है, प्रोडक्ट हो सकता है, इनर्ट मीडियम हो सकता है, कैटलिस्ट भी हो सकता है। दैट्स व्हाट वी हैव एज द सॉल्वेंट। ठीक है, Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. एक मिनट।
ओके अनन्या, सॉल्वेंट समझ में आ गया हमें? यस सर। ठीक है, ओके। तो वंस वी हैव टॉक्ड अबाउट द सॉल्वेंट कि सॉल्वेंट का क्या पर्पस होता है, नाउ लेट्स टॉक अ लिटिल अबाउट रेडिएशन। जब हम रेडिएशन की बात करते हैं तो रेडिएशन हर रिएक्शन को अफेक्ट करे ये जरूरी नहीं है। इनफैक्ट इनमें से सारे के सारे फैक्टर्स ये जरूरी नहीं है कि किसी ना किसी हर रिएक्शन को अफेक्ट करेंगे ही करेंगे। देयर कुड बी सम फैक्टर व्हिच कुड बी अफेक्टिंग वन रिएक्शन, another factor could be affecting another reaction, or there could be some factor which is not affecting the reaction. हो सकता है किसी रिएक्शन पे टेम्परेचर का इफेक्ट ना हो, किसी रिएक्शन पे कंसंट्रेशन का इफेक्ट ना हो, किसी रिएक्शन पे सॉल्वेंट का इफेक्ट ना हो। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि किसी रिएक्शन के ऊपर कोई इफेक्ट हो सकता है, कोई इफेक्ट हो सकता है। लेकिन जब भी रेट ऑफ रिएक्शन में अंतर आएगा, वेन एवर द रेट ऑफ रिएक्शन चेंजेस, तो हम कहीं ना कहीं पॉइंट आउट कर सकते हैं कि इस फैक्टर, इनमें से किसी एक फैक्टर की वजह से रेट ऑफ रिएक्शन चेंज हो रहा है। अब जैसे कि अगर हम रेडिएशन की बात करें तो रेडिएशन विल बी अफेक्टिंग द रिएक्शन विच आर डिपेंडेंट ऑन लाइट, जैसे कि फोटोसिंथेसिस हो सकता है या और कोई रिएक्शन हो सकता है जहां पे लाइट की इंटेंसिटी से फर्क पड़ जाएगा। तो रेडिएशन कैन अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन इन सम केसेस, ऑन अदर केसेस इट माइट नॉट अफेक्ट एट ऑल। ठीक है, सो दैट्स व्हाट वी हैव टू से अबाउट रेडिएशन, नथिंग मोर देन दैट। एंड नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द नेचर। नेचर का मतलब यह है कि what exactly is the substance, क्या है, कितनी एनर्जी चाहिए, कैसे चाहिए। तो दैट वुड बी टर्म्ड एज द नेचर ऑफ द रिएक्शन। नेचर। अब रिएक्टेंट की अगर नेचर बदलेंगे तो ऑब्वियसली रेट ऑफ द रिएक्शन चेंज हो जाएगा, ऑब्वियसली बहुत सारा चेंजेस आ जाएंगे। अब मेरा एक छोटा सा सवाल यह है कि अगर हम नेचर ऑफ प्रोडक्ट चेंज कर दें, प्रोडक्ट अगर हम बदल दें, प्रोडक्ट की नेचर में डिफरेंस आ जाए, तो क्या रेट ऑफ रिएक्शन चेंज होगा? नहीं, बट सर अगर प्रोडक्ट के नेचर में फर्क आएगा तो मतलब रिएक्टेंट में भी फर्क आएगा ना? नॉट नेसेसरली। एक मिनट। तो आप कह रहे थे कि क्या प्रोडक्ट से चेंज करने से रिएक्टेंट चेंज होगा। चलो एक सिंपल सी बात करते हैं, काफी चीजों में सॉल्वेंट से भी फर्क पड़ जाता है। जैसे कि एक छोटे से रिएक्शन की बात करते हैं, हमारे पास है बेरियम कार्बोनेट प्लस एसिड गिव्स अस सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ठीक है, एक छोटा सा रिएक्शन है। अब सवाल क्या है, हमारे पास अलग अलग एसिड्स हैं, एक है CH3COOH, एक है HCl, एक है HNO3 और एक है H2SO4। ऑल आर डाइल्यूट एसिड्स। ठीक है, और अगर हमें जरूरत यस पड़ती है तो हम इनमें से किसी का भी टेम्परेचर बढ़ा सकते हैं। ठीक है, यस सर। ओके।
इन चारों में से कौन सा एसिड इस रिएक्शन में यूज नहीं होगा? सर HNO3। क्यों? सर क्योंकि वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो यहाँ पे ऑक्सीडाइज किसे करेगा? अरे बेरियम ऑलरेडी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यस सर। कार्बन 4+4 में है, ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज होगा नहीं। हम्म सर HCl। वो क्यों? सर क्योंकि वो ऑक्सीडाइज हो सकता है। तो ऑक्सीडाइज करेगा कौन उसे? बेरियम कार्बोनेट कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो है नहीं। वो तो KMnO4 टाइट्रेशन की बात होती है ना। यस सर। द आंसर इज सल्फ्यूरिक एसिड। कारण? सर क्यों? बेरियम सल्फेट इनसॉल्युबल है, तो बेरियम कार्बोनेट को अगर सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट किया जाए तो बेरियम सल्फेट की एक कोटिंग बन जाएगी जो कि इस रिएक्शन को फर्दर होने से रोक देगी। इज दैट क्लियर? यस सर। ठीक है अनन्या, व्हेन शुड वी कंटिन्यू दिस क्लास? सर अभी तो मेरे